स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनका उपयोग करा जाए तो आप बहुत ही अच्छे रिटर्न्स पा सकते हैं। उनमें से एक रिसोर्स है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली जो एक पब्लिकेशन है, वो उसमें सब कुछ आपको नहीं पढ़ना है, पर कुछ चीज़ें आर वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे लास्ट ईयर का ही पेपर अगर देखा जाए, सो यहाँ पर आप एक चीज़ देख पाते हैं कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि लास्ट ईयर आए हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मेंस में। जैसे ये देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा शब्दों पे। द इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर इज लार्जली सिमेट्रिक एल्बीट सम एसिमेट्रिक फीचर्स। ठीक है, अब ये जो एक आर्टिकल आया है इस पे ध्यान दीजिएगा। इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर इज लार्जली सिमेट्रिक एल्बीट विथ सम एसिमेट्रिक फीचर्स। कॉन्स्टिट्यूशनल एसिमेट्री इन इंडियन फेडरलिज्म, ये जो आर्टिकल है ईपीडब्ल्यू पे 2021 में आया है। ये क्वेश्चन आपका 20 नंबर में 2022 के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मेंस में आया है। ठीक है, सो इससे ज्यादा सिमिलैरिटी क्या दुनिया में कहीं हो सकती है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट इज काइंड ऑफ लाफिंग स्टेटमेंट। टू बी वेरी ऑनेस्ट, द लाइन हैज बीन पिक्ड एंड केप्ट ओवर देयर एंड द एक्सप्लेनेशन इज हियर. Right? You see the similarity, you see the synchronization. Now you see आत्मनिर्भर, अगला ही क्वेश्चन, आत्मनिर्भर भारत अभियान इज अ प्रोग्रेसिव पॉलिसी, एनालाइज। अब मैं आपको आगे दिखाता हूं। उससे पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल जो है वो उसका बैच 2 31 मई को क्लोज हो रहा है। आई एम शेखर SC लाइव कोस्ट का यूज करते हुए, जो कि मेरे नाम के इनिशियल्स हैं, आप बहुत ही कम दामों पे, जो कि सेल्स है मंथ का एंड, इस पे इंश्योर करा लें अपना एडमिशन और इंश्योर करा लें अपना स्थान मेरिट में। साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द लाइव लेक्चर्स विद 12 टेस्ट and 8 would be the sectional, 4 would be full length discussions, handwritten note, crux, everything, right? Okay, so yes, let me connect again. So this question, Atmanirbhar Bharat, और देखिए, and the idea of Atmanirbhar Bharat, then in the policy sense, this same article discusses the question, can it be more similarity? These are the two questions I have taken. Each year you can find 5-6 questions directly from EPW. So isn't it a resource to invest? Definitely it is. So to take the matter forward, so I am starting public administration and series with EPW, and the relevant articles I would be discussing on the weekly basis, so that in case we are able to discuss at least 60-70 articles of EPW in a year, there is very high probability that we will definitely find 5-6 mains question from here. It is a very good investment of time. Let us start our discussion. So here we are. So in Economic and Political Weekly, there was this article, very good article, Anatomy of Crony Capitalism. So crony capitalism has been in the newspapers and elsewhere, in the discussion in parliament also, when we say the Adani and linking of the government and other leaders of the business world to the leaders of our political class, right? So over here, this article has a lot from the public administration, paper 1 and paper 2, from the topics like public-private partnership, rollback of the state, retreat of the state, and development dynamics, role of civil services, and the impact of LPG on the governance and capacity of the state, and in the times of private and public spheres being recreated and reshaped, how does the crony capitalism impact the aspect of development, the welfare aspect of the state? It somehow restricts it, and there are challenges, also suggestion in this article how to solve them, right? So let us have a look.
So there are what you have to see from this discussion is, number one, very important, try to write down the exact keywords. These keywords are very important when it comes to public administration mains answer writing. Reason being why? Because when you will write with a perspective or framework of a person who is writing general studies answer, that would not fetch you question and marks. So there are some very good words. Have a look. So क्रोनी कैपिटलिज्म जो है वो लिबरलिज्म और न्यू लिबरलिज्म का आउटकम है. लिबरलिज्म जो कि एक थ्योरी है पॉलिटिकल सेटिंग में, और उसका ही एक जो ऑफशूट है, हम मान सकते हैं काउंटर पार्ट है इकोनॉमिक टर्म में, वो है कैपिटलिज्म. और न्यू लिबरलिज्म है दोबारा से जो द स्टेट के रोल को कम करना और प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ाना. पर्टिकुलरली अगर हम डेवलपिंग सोसाइटीज़ में देखें तो MNCs, मल्टीनेशनल कंपनीज का होल्ड होना वहाँ की स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करने का बात है. सो न्यू लिबरल और लिबरल पॉलिसीज की वजह से हमें क्रोनी कैपिटलिज्म देखने को मिल रही है. क्रोनी कैपिटलिज्म को डिफाइन किया गया है कि ये क्या है, कि अनहोली नेक्सस है जो कि पॉलिटिकल क्लास और बिजनेस पर्संस के बीच में है. और इंडिया के केस में क्रोनी कैपिटलिज्म इज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ लाइसेंस परमिट राज. लाइसेंस परमिट राज. सो यू कैन गो इनटू पास्ट एंड सी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जब हर काम को करने के लिए पॉलिटिकल क्लास को सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी. Adoption of the liberal and new liberal economic policies that we adopted in late 80s and then further 90s, and it is continuing of successive government irrespective of political parties they belong. इसकी वजह से हमें crony capitalism देखने को मिल रहा है. तो crony capitalism is a bad type of capitalism where there is a sense of give and take in between political class and the business class, and also the key players among these two are bureaucrats. So आगे हम देखते हैं कि crony capitalism is a set of system where favoritism बहुत होता है, partiality होती है. कुछ ही business community के लोग select किए जाते हैं और उनको favorable treatment देती है political class और bureaucracy, and definitely that is not good for the overall economy and overall social economic development of a country. So definitely from the public administrative point of view, this is not good. This is not equal treatment. This is not something that state needs to do, and that to a welfare states. So again, then there is some Marxian ideology and other cultural aspects which are not very important from the perspective of public administration. Now again, the thing which is important, the Indian context. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का. सो नथिंग लाइक आपका USSR का सोशलिज्म जैसा था, पर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जहां पर कैपिटलिज्म भी एग्जिस्ट कर सकता है और सोशलिज्म भी एग्जिस्ट कर सकता है. इंटरप्ले होगा मिक्स्ड इकोनॉमी का. बिल्कुल ठीक है. सो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एनविसेजेस एज अ हाइपोथाइज करता है, ऐसा सोचता है, रिलेटिव इक्वालिटी not the absolute equality that pure socialism endeavors. तो इसका मतलब क्या है, रिलेटिव मतलब टोटली ऐसा नहीं है कि स्टेट के पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हो जाएंगे, पर एक सेंस ऑफ बैलेंस मिक्स इकोनॉमी के टाइप में करने की कोशिश करता है. इसके आगे, सो दो वी हैव एडॉप्टेड डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और अर्ली अनाउंसमेंट कर लिया था सोशलिस्टिक पैटर्न, जिसमें हमारे प्लानिंग कमीशन थी और साथ में DPSP में जो प्रोविजंस हैं वो भी था. सरकारी बैंकों का होना, सरकारीकरण करना बैंकों का, ऑल दीज थिंग्स वर देयर, यू नो, एंड द स्टेट वाज टेकिंग द लीड with the also help of private sector. But we see capitalist forces always played a dominant role in the socio-economic and political system of India, या तो overtly या covertly. तो उनका प्रभाव तो था. चाहे भारत के आज़ाद होने के बाद we were saying that we the people of India having solemnly resolved to constitute India a social, secular space and sovereign space, democratic republic. That social aspect, though added later on, but still was there, but definitely always surrounded by the big business houses. So politics और business का nexus है. So हमने जो लिबरल पॉलिसी अपनाई है इंडियन इकोनॉमी में, और 1980 से हम चले गए हैं फॉर अ इंडल्जेंस ऑफ कैपिटलिस्ट फोर्सेस नेशनल इकोनॉमी में. इससे कुछ बुरा भी हुआ है और उसके नेगेटिव प्रभाव भी आए हैं. अब एडॉप्शन ऑफ
LPG policies opened up new horizons for market economy. जहां पर मार्केट इकोनॉमी डेवलप नहीं हुई थी, अब LPG आने से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये आपके सिलेबस में 2-3 बार है, आप जाके देखिए जरा पेपर 1 में भी, ठीक है। सो इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, इम्पैक्ट ऑफ LPG ऑन द गवर्नेंस, ऑन द ब्यूरोक्रेसी, ये टॉपिक्स में है, सो इंपॉर्टेंट। द रोल ऑफ स्टेट क्या है, अब कितना प्रोड्यूस करना है, कहां प्रोड्यूस करना है, ग्रेजुअली रिटेंस्ड हो गया, कम हो गया, जिसको हम रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट, रोलिंग बैक ऑफ द जो हम ब्यूरोक्रेसी भी बोल सकते हैं, स्टेट भी, ये हुआ है, ठीक है। सो अब यहां पर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, अपना काम करना छोड़ दिया और सेलेक्टेड कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट आ गए हैं, जो कि जो वैक्यूम है LPG से जो छूटा है, विदरिंग ऑफ द स्टेट, हम कई तरीके की बात करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, डिफरेंट उसको नाम दे सकते हैं। ओनली स्टीयरिंग फंक्शन, नोट द रोइंग फंक्शन, एज वी सी इन न्यू पब्लिक मैनेजमेंट ऑल्सो। सो वहां पर से कुछ दिक्कतें आनी शुरू हुई हैं। अब यहां पर पॉलिटिक्स, वेयर डज पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी कम टुगेदर, ठीक है। इलेक्शंस हैव बीन अ हाईली कॉस्टली अफेयर इन इंडिया एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव इलेक्शंस। साथ में वी सी दैट lot of political parties are not free or are not clean when it comes to how they are being funded. And how they are being funded? They are being funded with these big business houses, and that is the reason we have crony capitalism in India. For an example, 18 of the political party in India between 2015 and 2020 6,500 करोड़ 6,500 करोड़ इन्होंने खर्च किए हैं। अब आगे देखिए, 2019 में लोकसभा का जो चुनाव है उसने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। 55,000 करोड़ का खर्चा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि 100 करोड़ फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी और 700 रुपीज फॉर ईच वोट। सो दैट इज अ मैसिव एक्सपेंडिचर। और अमेरिकन पब्लिक जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उससे भी हम आगे पहुंच गए हैं। सो फ्रॉम वेयर डज पार्टी गेट दिस मनी? द आंसर इज क्वाइट सिंपल, फ्रॉम द कैपिटलिस्ट, स्पेशली फ्रॉम द क्रोनीज। सो इसका मतलब है कि कैपिटलिस्ट के बीच में और क्रोनीज के बीच में, पॉलिटिशियंस के बीच में क्या है, नेक्सस है। रघुराम राजन भी इस बात को कह रहे हैं अपने स्टेटमेंट में। सो इससे मॉरल डिग्रेडेशन हुआ है वोटर्स का भी, सारे के सारे पॉलिटिकल जो क्लास है उसमें भी। और हम देख रहे हैं कि जो पीपल हु आर रिप्रेजेंटेटिव्स, दे आर becoming richer and richer, and they are not true representative of the poor or relatively middle class population that we have. जैसे यहां पर देखिए, एवरेज एसेट ऑफ लोकसभा की स्पीकर है 20 करोड़ और राज्यसभा का स्पीकर है 80 करोड़। That is not a reflection of our true society. Nobody among us are even nearer to that, right? So crony capitalism अब जेनिथ पे पहुंच गई है। So consequences of liberal and neoliberal policies has been that crony capitalism is direct consequences. और ये हमने बात करी ली है, लाइसेंस परमिट राज की वजह से हमें ये देखने को मिला कि ये मॉन्स्टर आ गया है, न्यू लिबरल पॉलिसीज आई और जिसकी वजह से ये और आगे बढ़ गया। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है यहां पर, क्योंकि द मैगजीन इज डेफिनेटली हैविंग अ लीनियंट व्यू अपॉन, इज लीनियंट on the leftist ideas, socialist ideas. So you have to take these, whatever you are taking, the reality with a pinch of salt. So though professor has written, no doubt about it, but when you are writing the answer, you don't have to sound like a Marxist, right? So you have to balance that. So there is definitely the reality, but from the UPSC point of view, you have to balance it out. That is need to be understood. और आगे धीरे धीरे इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम क्या बनता जा रहा है? मोनोपोलिस्टिक मार्केट सिस्टम बनता जा रहा है, जहां पर कुछ अब के समय में कुछ ही परिवार या जो बिजनेस लीडर्स हैं वो कैप्चर कर रहे हैं। पहले ये ओलिगोपोली था, कुछ ज्यादा परिवार थे, जो पुराने बिजनेस मॉडल्स परिवार थे वो थे। पर अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम नाम हो रहे हैं और कुछ लोगों के पास ज्यादा आ रही है। तो पावर और इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा हो गया है कैपिटलिस्ट का
कि ये इनको डेलीगेशन में फॉरेन कंट्रीज में जब विजिट्स हो रही हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर या अन्य लीडर्स की, तो इनको डेलीगेशंस में ले जाया जा रहा है। ये भी एक फॉरेन पॉलिसी का एक इकोनॉमिक आर्म है, उसमें कोई बुराई नहीं है, बट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ दिस राइट अप वी आर सीइंग दिस इन दैट कंटेक्स्ट। बिकॉज ऑफ सच फेवरेटिज्म कुछ ही लोग जा रहे हैं फॉरेन टूर्स पे भी, एंड एज एन आर्म ऑफ इंडियन डिप्लोमेसी यहां पर हमें देखने को मिलता है प्रोटेक्शनिज्म आ गया है, सेलेक्टिव कैपिटलिज्म। कैपिटलिस्ट अपनी वेल्थ को बहुत ज़्यादा बढ़ा ली है कम ही समय में, और वहां पर आपको देखने को मिल रहा है क्लियर टेस्टिमनी ऑफ फॉर्मिडेबल हाइट्स जो कि अटेन कर लिया है इंडियन डेमोक्रेटिक सेटअप में कैपिटलिस्ट क्लास ने। अब यहां पर बात करें कि कैसा आज के समय में है, तो 2001 की इंडेक्स 2021 की इंडेक्स है, उसमें इंडिया हैज रैंक 7th in the crony capitalism generation, and that is very bad because our per capita income is little more than $2,000 per year, and we should not be here, but we are here. That is a reality. So the economist ने जो तैयार करी है रैंकिंग, उसमें इंडिया 7th नंबर पे है, और 8% इंडिया की जीडीपी इज कमिंग फ्रॉम द क्रोनी कैपिटलिज्म। दैट इज नॉट अ वेरी गुड सिचुएशन। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के बारे में आपको पता ही है, ये भी एक इनइक्वालिटी बता रहा है कि 10% रिवील्स दैट 10% ऑफ द रिच होल्ड 77% ऑफ द टोटल नेशनल वेल्थ, वेयर बॉटम 60% के पास केवल 5% से भी कम संपत्ति है। सो इनकम की डिस्पैरिटी और ज्यादा बढ़ गई है कोविड-19 के समय, क्योंकि सेलेक्टेड जो कैपिटलिस्ट बिजनेस हाउसेस थे उन्होंने इसको गवर्नमेंट के पास आके पब्लिक और कैपिटलिज्म का जो क्रोनी मिक्सचर हुआ उससे ये प्रभाव देखने को मिल रहा है। सो दैट इज अनदर आर्ग्यूमेंट। अब इंडिया के डेमोक्रेटिक सेटअप पे दिक्कत ये करी है क्रोनी कैपिटलिज्म से, इट फ्लाउट्स द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी सिंस इट इज बेस्ड ऑन इनविडियस फैक्टर सच एज फेवरेटिज्म हो रहा है, नेपोटिज्म हो रहा है, भाई भतीजावाद हो रहा है, फेवरेटिज्म हो रहा है, पार्शियलिटी हो रही है, और इसकी वजह से कुछ बिजनेस लीडर्स को are going ahead, and the startup culture, people who are trying to come up in the business entrepreneurship are facing the heat because they are against the people who have all the wealth and all the means to influence the policy and also contacts, social capital. That is in itself a big barrier, constraint to develop a truly entrepreneur economy. अब इससे क्या प्रभाव पड़ता है? इससे क्या हो जाता है? मार्केट मोनोपोली बन जाती है, कुछ ही लोग आगे बढ़ सकते हैं। प्रिडिक्टरी प्राइसेस होती हैं, मतलब कोई भी शुरू में थ्रो अवे प्राइस पे अपनी चीजों को देता है ताकि औरों का बिजनेस बंद हो जाए। तो अभी आपको पता है चाहे टेलीकॉम में हो या और जगह ऐसी बिग कंपनीज ने ये करा है, उसी को प्रिडेटरी प्राइसिंग मैकेनिज्म बोलते हैं। और throwaway prices which have become possible only because bureaucracy, very important, public administration and political leadership से इन्होंने फेवर्स ले लिए हैं, इसलिए कर पाते हैं। ये लाइसेंस के लिए ज़्यादा फीस नहीं देनी पड़ती और पॉलिसीज को भी ये प्रभावित कर लेते हैं। और for the favorite capitalism, the rules and regulations are changed by the government and government undertaking according to the whims and fancies of these capitalist people. एंड पर्टिकुलर आप ये देख रहे हैं कि जो पब्लिक सेक्टर है उसको वीकेंड कर दिया जाता है या प्राइवेटाइज कर दिया जाता है, जैसे बीएसएनएल या एयर इंडिया। एक स्टोरी बनाई जाती है कि ये अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं क्योंकि, और जानबूझ के ऐसा करा जाता है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल ऐसा है। द पॉलिसी ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट इज rigorously applied and even profit making public sector units are privatized only to clear the way for the capitalists. So why would a government retreat back from the already sectors where the public sector units are performing very good? What is the reason? So according to the article, the reason is that they need to create a space for their friends or for the economic business houses so that they can fill in the gap. That is the argument. Now, due to privatization and monopolistic market, लोगों के पास जो employment की जो opportunity है वो कम हो गई है। So again, welfare economics, welfare policies, development aspect, role of bureaucracy, public-private partnership, you have to remember these points, and very good points. I have already showed you at the beginning of the lecture how there are directly questions coming. Do remember. So employment opportunities लोगों के पास कम हो जाती हैं, unemployment बढ़ जाता है, क्योंकि
इनकम सेलेक्टेड कैपिटल की बढ़ रही है, पॉलिटिकल पार्टीज के पास जा रही है। इनकम जो टोटल मनी है वो तो सेम है। If there is total money M and it has been taken away by very few people at the top of the hierarchy, so the bottom of the pyramid would be without money and would be unemployed definitely. The banking sector में भी ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जो फेवरेट कैपिटलिस्ट हैं इनकी जो असेट्स हैं ये पे नहीं करते हैं, और नॉन बैंकिंग जो आपके नॉन परफॉर्मिंग असेट्स के रूप में हमें बैंक का भी दिक्कत हो जाती है। एंड देन दीज बैंक्स ड्यू टू काइंड ऑफ अ क्राउडिंग आउट दे आर नॉट एबल टू सपोर्ट द अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स। और जो एमएसएमई सेक्टर है जहां पर लार्ज अमाउंट ऑफ जॉब्स हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ जो स्मॉल यूनिट्स हैं उनके पास पैसा नहीं है, उनके लिए जो पैसा होता है बाय द मीन्स ऑफ लोन्स इज वेरी लेस and at a high price. So at a cost of very few business cronies, we are letting our MSME sector to be squeezed down without the supply of the loans. Now, so again, जब ऐसा होता है तो लोगों के पास सेविंग भी कम हो जाती है, क्रेडिबिलिटी भी गवर्नमेंट की बड़ी कम हो जाती है, लेजिटिमेसी। क्रोनी कैपिटलिज्म इसके अलावा ये भी है, एक फॉर्मिडेबल प्रेशर ग्रुप की तरह काम करता है। डू रिमेंबर पब्लिक पॉलिसी जो आपका चैप्टर है, यूनिट है आपके पेपर 1 में, वहाँ पर है प्रेशर ग्रुप्स, हाउ पब्लिक पॉलिसी में प्रेशर ग्रुप्स काम करते हैं। प्रेशर ग्रुप अपने आप में एक टॉपिक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, प्रेशर ग्रुप्स। वहाँ पर प्रेशर ग्रुप्स ऑल्सो, क्रोनीज आर ऑल्सो वर्किंग एज अ प्रेशर ग्रुप एंड पब्लिक पॉलिसी को इम्पैक्ट कर रहे हैं। और इसमें यह भी कहा गया है कि कैपिटलिस्ट का जो इंटरेस्ट है वो लर्क्स बिहाइंड द मोस्ट पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। और ये भी कोई ओपन सीक्रेट है ये तो, कि ऑफिशियली कोई भी पॉलिसी आने से पहले कैपिटलिस्ट लोगों को पता चल जाती है। तो एक तरीके से कहना चाह रहे हैं कि क्या बजट जब आता है तो लोगों को पता होता है, बिजनेस हाउसेस को, या मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस जब कोई चेंज लाती है टैक्स स्ट्रक्चर में, कॉर्पोरेट टैक्स में, क्या पता होता है? सो पता होता है शायद, right? So that is, it is an open secret. The public policy are shaped and reshaped by business interests before being officially announced. Neoliberal policy ensure greater private participation in economy, even in those areas जो elected governments को जहां पर रहना चाहिए moral और ethical, जहां पर ज्यादा लोगों का एक तरीके से भला हो रहा है, वहां पर तो वहां भी स्पेस क्रिएट किया जा रहा है। अब इन्फिल्ट्रेशन, लार्ज स्केल करप्शन हो गया है पॉलिटिकल क्लास में, ब्यूरोक्रेसी में और मीडिया में। इससे क्या हो रहा है, डिसीजन मेकिंग, जो इंटीमेसी बिटवीन द पॉलिटिकल और बिजनेस लीडरशिप जो देखने को मिल रही है डिसीजन मेकिंग बॉडीज में भी, और ये इंडिया की इकोनॉमी, डेमोक्रेसी के लिए बहुत खराब बात है। इसने मॉरली डिग्रेड कर दिया है हमारे पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को, पार्टिसिपेटरी और डेलिब्रेटरी डेमोक्रेसी को। ना तो हम उन मुद्दों को उठा रहे हैं जनता, ना जनता लोगों से क्वेश्चन पूछ रही है, ना डिस्कशन डेलिब्रेशन हो रहे हैं संसद के अंदर और बाहर। रादर पीपल आर हैप्पी टेकिंग डोल आउट फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी एंड देन वोटिंग। पीपल आर हैप्पी टू हैव सम काइंड ऑफ लो हैंगिंग फ्रूट, popular schemes, but not seeing what is happening behind the wheel of those schemes. So ऐसा कंट्रोल जो है वो तो क्लियर मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है। प्रिंट ऑफ डिजिटल मीडिया में भी ये हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि इवन सोशल मीडिया साइट्स आर यूज्ड इफेक्टिवली टू प्रमोट नेफेरियस इंटरेस्ट, इन्फ्लुएंसर्स, राइट? एंड ऑल्सो media houses, just look at the ownership of media houses, the newspaper you read, the TV channels you see on daily basis. There is definitely some very in-depth analysis by a professor who has written this. The rule of law is replaced by arbitrariness. Principle of natural justice is overtaken by matsya nyaya. So the fitter, the bigger, the fitter, the big fish eats small fish. तो ये तो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी है उसके भी अगेंस्ट है। ये एज अ, इफ वी एक्सेप्ट स्टेट एज अ लेजिटिमेट पेरेंट गार्जियन ऑफ ऑल ऑफ अस, देन मत्स्य न्याय है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी, बड़ी बिजनेस हाउस छोटे बिजनेस हाउस को खा जाएंगे, उनका प्रॉफिट बढ़ता रहेगा, छोटे खत्म होते रहेंगे। तो ये मत्स्य न्याय वाला कॉन्सेप्ट है, ये तो आपको पता ही होगा। इवन चाणक्य, जब इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन हम सेकेंड पेपर पढ़ेंगे तो भी उसमें है। सो लॉ, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही क्या होता है, बन के रह जाता है। राइट इज माइट इज राइट का कॉन्सेप्ट आ जाता है।
और इससे इनइक्वालिटी, क्रोनी कैपिटलिज्म से इज ऑल्सो बैड बिकॉज इट लीड्स टू इनकम इनइक्वालिटी एंड दैट लीड्स टू सोशल हायरार्की ऑफ हैव और हैव नॉट्स। जैसे ऑक्सफैम की जो रिकॉर्ड, ऑक्सफैम की जो रिपोर्ट है वो जो कह रही है कि टॉप 10% आर हैविंग मोर देन 50%, 60% of our GDP, that in itself is a very bad situation, because now you have very different two social groups where one group is having too much of money and another is bereft of any money, and that would lead to law and order situation, that would lead to bad diffusion of government policy and many more problems. So social adhesiveness and cohesiveness deteriorate, गेटोआइजेशन होता है, गरीब लोग, माइनॉरिटी अपने एक कोने में चले जाते हैं और कुछ स्पेसेस पे, पब्लिक स्पेसेस पे केवल रिच का अधिकार हो सकता है. सच अ डिवाइडेड सोसाइटी easily becomes prey to self-aggrandizing and mean mind politics. मतलब जो अपने को बढ़ाए ऐसे पॉलिटिशियंस के गेम प्ले में आ जाती हैं. तो रीनिंग अब कैसे कम कर सकते हैं इसे? सो सिंस इंडिपेंडेंस, हम यहां पर बात हो रही है हाउ टू रीन इन क्रोनी कैपिटल, व्हाट आर द पॉजिटिव मेजर्स वी कैन टेक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर मेन पॉइंट्स ऑफ व्यू. डू राइट डाउन द मेन आर्ग्यूमेंट. इंडिया हैज एस्पाउस्ड डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, बिल्कुल लिबरलिज्म और सोशलिज्म एक साथ रहा है, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंडिक स्पेसिफिक सोल्यूशन भी ढूंढने पड़ेंगे. अब कुछ सोल्यूशंस की हम बात कर ले रहे हैं. क्या है कुछ सोल्यूशन? एक तो एक्सेसिव गवर्नमेंट का रेगुलेशन नहीं होना चाहिए, एक ऑप्टिमम लेवल पे होना चाहिए, बट दैट शुड नॉट बी एक्सेसिव, क्योंकि जहां भी गवर्नमेंट रेगुलेशन करती है उसके कुछ ब्यूरोक्रेटिक आपको पैथोलॉजीज भी होती हैं, दैट वी ऑल्सो नो. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड जो है ज्यादा होना चाहिए रादर देन एक्सक्लूसिव मोड. इसका मतलब है टोटली पीएसयू एंड टोटली प्राइवेट की जगह पब्लिक और प्राइवेट एक साथ आ जाए, तो उससे क्या होगा, मोनोपोलीज नहीं बन पाएंगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. डिसीजन मेकिंग में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए. कॉन्ट्रैक्ट कैसे दिए जा रहे हैं, जैसे आपको लेट मी टेल यू नेम ऑफ ब्यूरोक्रेट, बी चंद्रकला. So this bureaucrat, IAS officer, she was also DM of some of the Western UP district, and when she was posted in one of the mining district of Uttar Pradesh, she was accused of doing a corruption in e-tendering process of giving mines. Or for that matter, another is Pooja Singhal of, in recent times we can recall, in mining घोटाला of झारखंड. सो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हैं ये अपने आप में बहुत बड़े क्रोनी कैपिटलिज्म के फाउंटेन हेड है. इनको क्या करना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ड्यू प्रोसेस लॉ और प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ फॉलो होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी बॉडी होनी चाहिए, रेगुलेटरी बॉडी ज़्यादा अच्छे से काम कर सकें. प्राइवेट सेक्टर के लिए भी कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए और इनके भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट को ये लाएं. इसके अलावा फिनेंशियल पॉलिटिक और स्ट्रिक्ट ऑडिट होना चाहिए फाइनेंशियल एस्पेक्ट का, पॉलिटिकल पार्टीज का, उनके इनकम के बारे में, और उनके ऊपर भी हम इंफॉर्मेशन जो भी है ले सकें. जो ग्रे एरिया है फंडिंग का, इलेक्शंस, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, वो क्लियर हो. और अपोजिशन पार्टीज और सिविल सोसाइटी, ये बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो इन टॉपिक, इट इज द टॉपिक. सिविल सोसाइटी, इट्स एन एम्ब्रेला बॉडी ऑफ ऑल टुगेदर सोसाइटियल वेरियस ग्रुप्स, हम सेल्फ हेल्प ग्रुप, एनजीओ, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उनके सिविल सोसाइटी के अंदर आते हैं. ये जहां जहां पे इंपॉर्टेंट है वो अपने आप में स्ट्रांग है, वो क्रोनिज्म पे थोड़ा कब्जा कम कर सकते हैं, थोड़ा उनको कंट्रोल में ला सकते हैं. ट्रांसपेरेंट और मेरिट बेस्ड सिस्टम होना चाहिए प्रोजेक्ट्स के अप्रूवल में. अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी आपने देखा होगा स्विस चैलेंज मॉडल है, BOOT है, और बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर है. ये सब में क्लैरिटी होनी चाहिए. और प्रमोशन ऑफ एथिकल मीडिया प्रैक्टिसेस होना चाहिए, तो ताकि चेक एंड बैलेंस बना रहे. ओके, सो दैट वाज ऑल, एंड we are very thankful to Kapil S. Kamble sir. He teaches political science at Government First Grade College, Karnataka, Kakatanur. So this was the discussion of EPW article with you. I hope you will like it, and do check yourself. There is definitely a case for giving attention, at least
for 1 hour or half an hour per weekly. I would be making these videos regularly. Do watch this space. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।